Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine and enjoying good health. Students, you know we have started chapter 4 agriculture and main crops. Today we will discuss about animal farming and selective breeding. So at the end of this lecture you will be able to learn about animal farming, to know about selective breeding and its importance. So before moving to the main topic, let's have a quick review of our previous lectures. Agriculture. You know, it is the science or practice of farming, including cultivation of land for growing crops and rearing of animals. And growing of crop is the most important aspect of agriculture, and it is known as arable farming. As we cannot live or survive without grains, there are two types of crops. Staple crop. Staple crop is the crop that we grow to provide food to the people, like wheat, rice, barley, oat. And cash crop, it is the crop that is grown to earn profit or money, like rubber, coffee, cotton. Animal farming. So let's move to our today's topic. What is animal farming? What is animal farming? It is the branch of agriculture which deals with the rearing of animals and birds. यानी कि ये किससे डील करती है? एनिमल्स और बर्ड्स की rearing से, इनके पालने से. Farm animals include goat, sheep, poultry, cattle, fish, donkey, mule, buffaloes, yak, reindeers, geese, chicken. All these animals are included in livestock farming. इसमें जो है वो आते हैं. So we can categorize animal husbandry or animal farming into cattle farming, in which rearing of animal and buffaloes for their milk and meat, and poultry farming and raising of fowls for their eggs and meat, fish farming for capturing and culturing of fish for their meat, and apiculture, it is the beekeeping for their honey and wax. Animal farming is an important aspect of agriculture. Its reason is that it makes up about 25% of all agriculture the world over. दुनिया की जितनी भी एग्रीकल्चर है उसका 25% जो है वो एनिमल फार्मिंग जो है उसे फार्म अप जो है वो होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है. व्हाट परसेंटेज इज़? इट इज़ 25%. दैट इज़ वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. Similarly, there are some other important aspects, there are some other important uses of farm animals that make it important. And इनके जो different uses हैं in the agriculture or in the farms or in daily life, that is carrying loads. वज़न जो है वो ये उठा के एक जगह से लेकर जाते हैं. Pulling plow, they are used for plowing fields in developing countries, and similarly they are also used for drawing water from the well or for irrigation purpose in the less developed countries. But जो मेन इनका जो यूज़ है that is for they are reared, that is dairy products, to get dairy products, meat and skin and hides. कि इनको all over the world जो है वो इनको फार्म एनिमल्स जो हैं उनको रखने का मकसद जो है वो है कि उनसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल की जाए, लाइक मिल्क एंड द थिंग्स मेड ऑफ मिल्क, मीट, स्किन और हाइड्स. सो स्टूडेंट्स, if you look at Oxford School Atlas, page 27, you can see that there are areas which shows livestock farming in Pakistan. के पाकिस्तान के किन किन areas में livestock farming जो है वो होती है. So now let's move how the rearing of animals started, या how the domestication of animal was started. About 12 to 15,000 years ago, perhaps, when hunter caught an animal. It started 12 से 15,000 साल पहले जो है वो शुरू हुई. एंड डू रिमेंबर इट वॉज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल वर हंटर्स. दे यूज टू गेट देयर फूड बाय हंटिंग. सो when hunters caught an animal, sheep or goat, and if they had already caught enough to eat, they took the animal tied up with creepers back to their settlement. और उनके पास उन्होंने एक जानवर जो था वो पकड़ा, और उनके पास चूँकि पहले ही जानवर मौजूद थे, चुनाचा वो उसको अपनी सेटलमेंट, अपनी उस जगह पर ले गए जहाँ वो रहते थे, और उन्होंने उसको क्रीपर्स के साथ जो था वो टाई अप कर दिया. क्रीपर्स मीन अ प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड. प्लांट्स के साथ उन्होंने इसको ग्रो कर दिया. एंड इसकी रीज़न जो थी कि दे फेल्ट दैट इफ दे वन डे दे कॉट नथिंग while hunting,
दे कुड किल एंड ईट द कैप्चर्ड एनिमल, कि अगर किसी दिन उनका शिकार जो है वो उन्हें कोई जानवर ना मिला तो वो इस जानवर को जो है वो खा सकेंगे. Perhaps they captured several, but they were still wild. Then perhaps one of the animal had a baby that grew up with people and was more tame. लेकिन इस दौरान ऐसा हुआ कि उन्होंने काफ़ी जानवर जो थे वो पकड़े और उसकी नौबत नहीं आई कि वो उस जानवर को जो है वो इस्तेमाल कर लेते, खा लेते. और मीन वाइल वन ऑफ द एनिमल जो है इट गेव अ बर्थ टू बेबी, और उस जो बेबी जो था, जो एनिमल था, उसने इट स्टार्टेड टू ग्रो अप विद पीपल, और वो ज़्यादा टेम, ज़्यादा पालतू, ज़्यादा फेमिलियर जो था वो लोगों के साथ जो था वो हो गया. सो इस तरीके से ओवर द ईयर्स द एनिमल्स बिकेम मोर एंड मोर टेम सो डैट द पीपल कुड मैनेज दैम. अब वक्त के साथ साथ एज द टाइम पासेस वो एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा फेमिलियर होते गए, ज़्यादा टेम होते गए. ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको भी पता चल गया कि हाउ टू मैनेज दैम, उनको कैसे मैनेज करना है. एंड दे न्यू कि वट थिंग्स दे कैन, वट बेनिफिट्स दे कैन गेट फ्रॉम दीज एनिमल्स. सो लेट्स सी what was the uses of animals by early men. The most important use or for these animal was the people always have had meat ready if hunting was poor. यानी कि अगर उन्हें शिकार नहीं मिलता था तो ये जानवर वो खा के गुजारा जो था वो कर लेते थे. They had milk from the sheep and goat. They had skins to make cloths and shelter. उनकी जो स्किन और उनकी जो हाइड्स थी उनसे वो अपने कपड़े बना लेते थे, शेल्टर्स के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते थे. They had bones and horns to make weapons and tools. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ द एनिमल, कि उनकी जो बोन्स हैं व्हेन दे हैव ईटन द मीट, द बोन्स और हॉर्न जो है वो उनसे टूल्स और वेपन्स जो हैं, हथियार जो है वो बना लेते थे टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ और फॉर द हंटिंग. And finally, when they found that animals, particularly the larger one, such as oxen and donkeys, could carry much heavier loads than a man could, so they were used for moving goods and heavier loads. जब उन्हें पता चला कि ये सामान ज़्यादा उठा सकते हैं तो उन्होंने उसको सामान उठाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोड लेके जाने के लिए भी इस्तेमाल करना जो था वो शुरू कर लिया. As human beings settled and began farming, another use of these animals was plowing the field. Oxen and bullocks जो हैं वो उनसे plowing the field जो है वो they were used for plowing the field. उसके लिए जो थे वो यूज़ किए जाते थे. So अब जो इंसान है उसको दे न्यू हाउ टू डोमेस्टिकेट द एनिमल, उसने डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डोमेस्टिकेशन जो है वो शुरू कर दी थी. लेट्स सी विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड. शीप वॉज द फर्स्ट वाइल्ड एनिमल अपार्ट फ्रॉम डॉग टू बी डोमेस्टिकेटेड. कहा जाता है कि शीप जो है वो सबसे पहले डॉग के अलावा डोमेस्टिकेट जो है वो किया गया. एंड दिस टुक प्लेस इन वेस्ट एशिया अबाउट 11,000 ईयर अगो. 11,000 साल पहले जो है वो शीप की डोमेस्टिकेशन जो थी वो शुरू हुई थी. And then goats followed about 1500 years later. 1500 साल के बाद तकरीबन गोट्स जो थी उनकी डोमेस्टिकेशन जो शुरू हुई थी. एंड फाइनली पीपल स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट डिफरेंट एनिमल्स लाइक ऑक्सन, बुफेलोज, कैमल, डंकीज, यॉक, रेंडियर, हॉर्सेस. पोल्ट्री में चिकन, डक्स, गीज. All these animals were domesticated early and gave a steady food supply of meat and eggs. And with the passage of time in the New World, vicuna, alpaca, and llama and the mules were domesticated. These are relatively new animals. Alpaca, llama are the descendant of vicuna. They are mostly found in northern or southern America, Europe, Australia. दे आर रियर्ड फॉर देयर फर एंड मीट. इनके लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं. मे बी सम ऑफ यू मे नॉट बी फेमिलियर ऑफ दीज एनिमल्स, आप लोगों ने इनको पहले ना देखा हो. सो एल्पका, लामा एंड विक्यूना एज दीज आर नॉट फाउंड इन पाकिस्तान. सो ये मुख्तलिफ एरियाज़ में किए जाते हैं. इनका बेस रियरिंग ऑफ दीज एनिमल इज़ फॉर गेटिंग फर, मीट एंड मिल्क, उसके लिए यूज़ की जाती हैं. रेंडियर एंड यॉक और ऑल्सो क्वाइट ओल्ड एनिमल्स डैट वर डोमेस्टिकेटेड. और दीज आर इनकी जो है क्वालिटीज़ के माउंटेनियस एरियाज़ जो है वो उसमें इनको ये रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. रेंडियर इज़ अ काइंड ऑफ डियर. डियर की फैमिली से है जो है वो बिलोंग करता है. इट इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन और इट इज़ ऑल्सो रियर्ड फॉर मिल्क, फर एंड स्किन. एंड इट्स क्वालिटी जो है वो ये है कि ये इट कैन वॉक इन ग्रासी लैंड एज वेल एज इन द आइसी फील्ड. एज यू कैन सी हेयर अ लॉट ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स इसमें जो मूव कर सकता है. सेम इज़ विद याक. याक इज़
a native of Himalayas, and it is found in Himalayan region and Tibet and China and Nepal. हैवी बिल्ट एनिमल है, इस ये जो कवर्ड होता है लेयर ऑफ हेयर से, यू कैन सी। और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों पे जहाँ पे स्नोफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए इट्स अ गुड सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट। सिमिलरली इसको फॉर फ्लोइंग एंड फॉर एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन जो है, टू कैरी थिंग्स जो है वो, इसको इस्तेमाल जो है वो भी किया जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट और कंपैरेटिवली न्यू एनिमल दैट वाज रियर्ड इज़ म्यूल। म्यूल जो है, इट इज़ एन हाइब्रिड एनिमल, इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड एनिमल, एंड इट इज़ अ हाइब्रिड जो है, इसका मतलब जो है वही होता है कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। और इन एनिमल्स में हम उसको कहते हैं एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ टू एनिमल्स और प्लांट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस। लाइक म्यूल जो है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डंकी फादर एंड अ फीमेल हॉर्स। सो ये भी इसको हाइब्रिड एनिमल है, जो इट इज़ एन रियर एग्जांपल ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जो हम इसके बारे में जो है वो आगे पढ़ेंगे। सो पीपल स्टार्टेड टू रियर दीज एनिमल्स, उनका डिफरेंट यूज़ जो था वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। एंड now comes the invention of the wheel. So this is very important, which is, it is a turning point of the history. When the human beings or the early men knew that larger animals or animals could carry much heavier loads, so they started to fasten the animals to a skid. उन्होंने skid के साथ जो है वो बांधना शुरू कर दिया, animal were fastened to skids के साथ बांधना शुरू कर दिया। And what is a skid? Two long poles on which even heavier loads could be carried. ये एक ऐसा इस किस्म की दो पोल्स हैं लकड़ी के, जिसके ऊपर हैवी वेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैरी किया जा सकता था। एंड ऑल ऑफ दिस टुक 1000 ऑफ ईयर्स ऑफ टू डेवलप, कि लोगों ने जो है ग्रेजुअली पहले उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू की, फिर दैन उन्होंने यूज़ किया कि उसको किस तरह एनिमल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका क्या यूज़ हो सकते हैं। फिर उन्होंने उसके ऊपर वेट जो है वो कैरी करना शुरू किया, हैवी लोड उन्होंने इस पर डालना शुरू किया। एंड फाइनली दे मेड स्किड्स के जी हम इस तरह जो है वो ज़्यादा वेट जो है वो लेके जा सकते हैं। एंड देन केम दी almost 5000 years ago came one of the most important invention in the history of mankind, and the wheel, and it took place in the Fertile Crescent. So let me tell you what is the Fertile Crescent. Fertile Crescent is a crescent shaped region in the Middle East. Here you can see मिडल ईस्ट में ये एक क्रेसेंट टाइप शेप है। क्रेसेंट का मतलब था चांद की तरह इसकी शक्ल जो है वो बनी हुई है। इन ओल्डन टाइम इट वाज नोन एज द मेसोपोटामिया, जिसको और फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता है बिकॉज देयर आर रिवर्स लाइक नाइल रिवर और टिग्रस रिवर और यूफ्रेट रिवर, जहाँ पर ये सिविलाइजेशन जो है वो इनके इर्द गिर्द जो है वो पाई जाती है। यू मस्ट नो दैट civilization, human civilization are always found near the bank of rivers. For example, Indus Valley civilization, it was situated in, still it is situated along the bank of the river Indus. सो ये वो इलाका था फर्टाइल लैंड, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स थे और यहाँ पर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप जो है वो भी यहाँ पर शुरू हुई। सो यहाँ पे जो है सेट कहा जाता है कि जी इन्वेंशन ऑफ व्हील जो है डैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द हिस्ट्री, वो जो थी वो शुरू की गई। इस एरिया में आजकल जो है मॉडर्न जो ज़माने में जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं डैट इज़ इराक, सीरिया, लेबनान, इसराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, टर्की और इजिप्ट के कुछ इलाके जो हैं वो इस एरिया में जो हैं वो आ रहे हैं। और मोस्टली ये भी कहा जाता है कि मेसोपोटामिया जो इस वक्त का करंटली जहाँ पे इराक जो है सिचुएटेड है, कहा जाता है कि बेसिकली दिस वाज द ओरिजिन जहाँ पर व्हील की इन्वेंशन जो थी वो हुई थी। सो नाउ लेट्स सी हाउ द व्हील वाज इन्वेंटेड। द व्हील ऑलमोस्ट सर्टनली डेवलप्ड फ्रॉम अ log of pine or fir trees lying on the ground whose branches had been broken off or cut off with flints. कहा जाता है कि ह्यूमन्स ने या किसी इंसान ने लॉग और ट्रंक ऑफ ट्री को जो है ही सॉ इट रोलिंग डाउन, उसने इसको रोल होते हुए जो है वो देखा। एंड मैन फाउंड दैट दे कुड मूव हैवियर लोड्स बाय यूजिंग लॉग टू रोल दैम ऑन। एंड देन ही केम एन आइडिया कि जी जिस तरह ये as it came rolling down very quickly, so we can also carry heavier loads by using these logs. So उन्होंने from this the idea of wheel no doubt developed, और यहाँ से उन्होंने wheels का idea जो था वो develop करना शुरू किया। और idea came from
कहाँ से आया? फ्रॉम द लॉग डैट वॉज रोलिंग डाउन फ्रॉम द अपवर्ड्स. सो अर्ली मैन यूज व्हील्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स. उन्होंने हैवी ऑब्जेक्ट्स जो थे वो इससे बनाना जो थे वो शुरू कर लिए. एंड देन फाइनली इट यूज टू मेक कार्ट्स लाइक स्लेजेस टू कैरी हैवी लोड्स. फिर उन्होंने कार्ट्स बनाना शुरू कर दी ताकि इस किस्म की हैवी जो है वो लोड जो है वो उठाया जा सके, लाइक स्लेजेस इसमें कहते हैं. मेकिंग ऑफ कार्ट्स मेड मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ईजी. और लोगों के लिए आसान हो गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी के साथ जो है वो जा सकें. इट टुक ऑल ऑफ दिस टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप. काफ़ी साल जो थे वो इसमें लगे. सो लेट्स सी व्हाट वर द हाउ वाज द एवोल्यूशन ऑफ व्हील. फर्स्ट व्हील्स वर इंडीड ट्री ट्रंक्स और लॉग्स. जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये ट्री ट्रंक्स और लॉग्स थे जिसके ऊपर वो डिफरेंट चीज़ें रख के उसको खींचते थे और मूव करते थे ताकि चीज़ें. नेक्स्ट डेवलपमेंट वॉज द स्लाइसेस ऑफ ट्री. दीज ट्रंक्स जॉइंट टुगेदर थ्रू एन एक्सल. सो थ्रू एन एक्सल उन्होंने ये एक्सल अगर आप देखें उन्होंने उसके पीसेस काटे और उसके साथ उसको लिंक करके एक्सल को दिस इज़ एक्सल तो उन्होंने मूवमेंट जो थी वो शुरू कर दी. एंड सिमिलरली कार्ट्स वर इन्वेंटेड. दे मेड कार्ट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इनसे कार्ट्स जो थी वो डेवलप शुरू हुई. लेटर दीज विल बिकेम मॉडर्न वुडन डिस्क कट इनटू सर्कुलर शेप विद द होल ऑफ एक्सल. फाइनली फिर उनके अंदर उन्होंने होल करके. सो यू कैन सी कि दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ व्हील्स दैट इज़ एवेलुएटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो हैं वो इस चीज़ की डेवलपमेंट में जो है वो लगते हैं और न्यू आइडियाज़ जो हैं वो आते गए और आहिस्ता आहिस्ता नाउ आर डेज वी कैन मूव much faster and we can travel a longer distance in a very short time with the help of these wheels. So let's see what are the advantages of these wheels in our today's life. People even today are making great use of wheels because it has fundamental impact on transport, agriculture and industry. इसकी वजह से एग्रीकल्चर में कार्ट्स का यूज़, बुलक का यूज़, मशीन्स जो हैं वो आ गई जिस इम्प्रूवमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा हुई. एंड इट गिव रेस टू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरी मशीन. व्हील जो है वो हर मशीन में जो है वो आप उसको उसका इस्तेमाल आपको नज़र आएगा. एंड इट ब्रॉट अबाउट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड मेड वर्क ईजियर एंड इंस्पायर्ड इवन मोर न्यू आइडियाज़ फॉर इन्वेंशन. व्हील की वजह से काम जो है वो बहुत आसान हो गया और उसकी वजह से बहुत से नए आइडियाज़ आए, डिफरेंट नई इन्वेंशंस के. काम इससे क्यों आसान हो गया? बिकॉज इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. ये रेजिस्टेंस जो है वो कम करता है एंड मेड इट ईजी कि काम जो है वो जल्दी से और आसानी के साथ जो है वो हो जाए. एंड सो जो व्हील जो थी उसकी जो इन्वेंशन थी इट चेंज द होल आइडिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. कि लाइक पहले जो लोग लोड्स के लिए एनिमल्स पे कैरी करते थे, फिर स्किड्स बनाते थे, फाइनली उन्होंने कार्ट्स बनाने शुरू की और कार्ट्स के साथ अप टू मॉडर्न व्हीकल्स जो हैं अब हम एरोप्लेन, ऑल द थिंग्स आर मूव्ड ऑन व्हील. Archaeologists say that the wheel is the second most important invention in the history. What do you think they consider the most important? Archaeologists के मुताबिक wheel is the second most invention. What do you think is the most? Number one और first जो है important invention जो है वो कौन सी है? Think about it. Do you know? Okay, fire. The most important invention in history is fire. फायर जो है जनाब सबसे पहली इन्वेंशन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है. वाई? बिकॉज दिस इनेबल्ड फूड टू बी कुक्ड, टू कीप ह्यूमन्स वार्म सो दैट दे कुड मूव इन टू कूलर रीजन्स एंड टू प्रोटेक्ट देम एट नाइट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. So girls, you know that at that time when the fire was invented, people used to live in caves or in open. So the main purpose was it to protect them at night from the wild animals. So remember, wheel is the second most invention जिसने रिफॉर्म्स, डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो न्यू टेक्निक्स जिसकी वजह से हम मिली हैं या जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में काफ़ी बड़ा चेंज जो है वो आया है. और फर्स्ट इन्वेंशन इज़ फायर. सो नाउ लेट्स मूव टू सेलेक्टिव ब्रीडिंग. व्हाट इज़ इट? It is known as artificial selection. It is a process used by humans to modify the characteristics of animals and plants, especially to develop new organisms with desirable traits. Selective breeding जो है इसमें आप ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कंट्रोल करते हुए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो अपने डिज़ायर्ड जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स में करेक्टरिस्टिक्स या डिज़ायरेबल ट्रेट्स जो हैं वो उसमें डेवलप करते हैं विद द कंट्रोल्ड प्रोसेस जो वो ह्यूमन दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन बींग्स. Selective breeding started in 1700 in the UK when there was farming revolution.
फार्मिंग रेवोल्यूशन जो है इट ब्रॉट ग्रेट चेंजेस इन क्रॉप्स एंड एनिमल्स एंड इट इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग. उसकी रीज़न जो है वो लेट मी टेल यू कि जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है उसमें कौन से स्टेप्स जो थे वो लिए गए थे. फार्मिंग रेवोल्यूशन में कौन से स्टेप्स जो थे वो लिए गए थे. 1700 में तकरीबन ये रेवोल्यूशन जो था वो आया था और इसमें जो है फर्स्ट स्टेप वाज द न्यू सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग. द पीपल ऑफ यूके स्टार्टेड टू ग्रो देयर क्रॉप्स विद रोटेशन. उन्होंने एक ही क्रॉप की जो थी बार बार उसको एक ही जगह पर उगाना जो था उसको छोड़ के उसकी रोटेशन जो थी वो शुरू की. सेकेंडली दे स्टार्टेड टू ग्रो न्यू क्रॉप्स लाइक टर्निप और क्लोवर, इस जिससे फर्टिलिटी ऑफ लैंड कुड बी मेंटेन्ड. एंड सेकेंडली द इंक्लोजर एक्ट in 1760 was passed in UK and it allowed wealthy lord to purchase public fields. कि 1760 में इंक्लोजर एक्ट जो था वो पास किया गया था अंडर दी, जिसकी वजह से जो वेल्दी जो अमीर लॉर्ड्स हैं उन्होंने लैंड जो थी वो परचेज़ कर ली थी एंड स्मॉल फार्मर्स वर पुश्ड आउट. एंड दिस सिस्टम एंड दिस एक्ट लिमिटाइज द कॉमन लैंड अवेलेबल टू स्मॉल फार्मर्स उन्होंने था. एंड सेकेंडली इसी में सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है वो दे इंट्रोड्यूस द सेलेक्टिव ब्रीडिंग. अब हाउ द सेलेक्टिव ब्रीडिंग स्टार्टेड because when these जो fields हैं they were purchased by the wealthy landlords, so some rich farmers traveled around the country buying the largest fattest and best animals they could find. अब उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो डिफरेंट कंट्री में ऑल ओवर दी गए और उन्होंने ताकि वो अच्छे जानवर जो हैं वो ढूंढ सकें. अब वो वाई दे वर लुकिंग फॉर द लार्जेस्ट एंड फैटेस्ट एनिमल, बिकॉज दे नीडेड टू हैव these animals to work like pulling carts and plowing, so these animals should have strong muscles and bones. तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम कोई अच्छे एनिमल्स और अच्छे फैट और लार्ज एनिमल्स जो हैं वो फाइंड आउट करें, क्योंकि जो फॉर मच ऑफ द हिस्ट्री जो फार्म एनिमल्स रिमेन मच द सेम एज दे वर इन द वाइल्ड. क्योंकि जो हिस्ट्री में जो फार्म एनिमल्स जो थे जो कॉन्टीन्यूसली एक ही जगह पर रह रहे थे उतने स्ट्रॉन्ग जो थे वो नहीं थे. सो इस वजह से उन्होंने मुख्तलिफ एरिया से जो है वो एनिमल्स जो थे वो उन्होंने लेकर आए एंड दे थॉट दे ब्रीड दीज इन द होप ऑफ दैट देयर ऑफस्प्रिंग वुड बी लार्जर एंड बेटर. उनका ख्याल था कि जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं वो कुछ बेहतर होंगे और इम्प्रूव होंगे. सो दैट इज़ हाउ द सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है वो इट स्टार्टेड, इट टुक प्लेस. सो इसका जो है वो फ़ायदा जो है वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हुआ, क्योंकि आप जो पास्ट में आपके एनिमल्स या प्लांट्स जो थे उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी या इतनी अच्छी प्रोडक्शन जो है वो नहीं थी, लेकिन सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड्स जो है वो डेवलप करते हैं और इट रिजल्ट्स इन बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट. आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर हो जाती है. सिमिलरली इन हायर यील्ड इन प्लांट्स जो है वी कैन गेट मच बेटर प्रोडक्शन. एंड लुक एट द एग्जांपल्स. These are the example of the plant. The corn, this is the corn hybrid corn, while these are the corns from the history. ये weak हैं, with the passage of time gradually they are becoming much better. उनका अब जो latest corn है that has more grains, इसकी grains हैं that is good in color. इसकी quality जो है वो it is much better and it is यहाँ पे chances जो हैं वो बहुत है कि इनको ज़्यादा कीड़ा लगने के chances जो हैं वो, इसकी production बहुत ज़्यादा है, कीड़ा लगने के chances जो हैं वो बहुत कम है. Another real example of selective breeding is mule. I told you that it is from it is a combination of donkey and horse, so it has the quality of both donkey and the horse. Like it is strong, it is not too heighted, but it is calm, it is more stronger than the donkey, and it is much long living than the horse. So yes, similarly if you look at these two picture, this is the picture from the wild cow. जो अर्ली या हिस्ट्री में जो काउ जो थी वो जो कंटिन्यूसली आ रही थी आगे, वो इस उनकी शेप जो थी वो इस तरह थी. बट आफ्टर द सेलेक्टिव ब्रीडिंग यू कैन सी इट हैज़ much better shape. It can produce more milk than those typically bred cows in the past. So selective breeding जो है it proves a great change in the life in the history of in the field of plants agriculture.
and growing crops and in rearing of animals. Okay, nowadays a lot of breeds are commonly available in cattle to get much better production. So hope now you have learned what is animal farming and what is selective breeding and what is its importance. So let's recap. Animal farming is rearing of farm animals and birds, and it makes up about 25% of all agriculture, and the animal farms are used for plowing, carrying loads, dairy products, etc. Domestication of animals started about 12 to 15,000 years ago, and the first domesticated animals were sheep, goat, cattle, horse, camel, donkey, yak, chicken, ducks, and then the new one are llama, uh, vicuna. The most important invention in this era is the wheel, that was invented about 5,000 years ago in the Fertile Crescent. And next is the selective breeding, which is selection of required traits under the controlled human process. So I hope you have understood the topic. So here is your home task. Read the topics stock or animal farming and selective breeding on page 36 and 37 thoroughly for your understanding and learn its important points. Okay, thank you. Allah Hafiz.